ونستغفره أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران 55 صرف تلاوہ ہوئی تھی اور تھوڑا بہت ٹچ کیا تھا بس. اب 55 سے ہی کرنا ہے. میں تھوڑا تلاوت کر دیتی ہوں ایک رکوع تک انشاءاللہ یا اس سے کچھ کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کتنی آیت ہوئی اب دیکھیں گے اس کا ترجمہ. یہ پڑھ چکے تھے ہم اس سے پہلے بھی. پچھلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہو گئے ہیں جو تمہارے اگینسٹ سب ہو گئے ہیں اور ان کی چال. اس سے پہلے آ گیا دیکھیے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کہ وہ بھی چال چل رہے ہیں. کیا چال چل رہے ہیں؟ یہ سب مل گئے ہیں کہ ان کو پھانسی پر سولی پر چڑھا دیں. یہ چال ان کی ہو رہی ہے. اور اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. ان کو غزن بھی کچھ نہیں پہنچنا, ان کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکنا. اور اللہ اور رفع سماوی کا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اٹھا لوں گا, میں اپنی طرف بلا لوں گا. رافعو کا اب اس میں تھوڑے باب تفیل باب افعال ہے. یہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسا آپ کو پہلے اس سے پچھلی آیت میں انزلہ اور تنزیل میں آپ کو معلوم ہو گیا باب یہ افعال کیا ہے اور باب تفعیل کیا ہے. انزال ہوا تھا قرآن کا پورا قرآن آسمان دنیا پر ایک لخت ایک بارگی ایک ہی وقت ایٹ اے ٹائم اتار دیا گیا تھا. اور وہ تھا باب افعال میں, یعنی ایک دم اتار دینا, پورے کا پورا اتار دینا. اس کے بعد وہاں سے 3 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ موقع محل کے مناسبت کے حساب سے جیسا بتدریج سٹیج بائی سٹیج اتارا گیا وہ آتا ہے باب تفعیل میں. اور اس فعل کو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنزیل. انزال جو ہے, انزال کیا ہے؟
इंजाल एक पूरा उतारना, पूरा का पूरा एक साथ उतार देना, आहिस्ता आहिस्ता काम नहीं। ये तंजील में जब बाब तफील से आता है तो ये तदरीजन उतारना। बाब तफील में कई खुसूसियात थी, ये एक ही नहीं, जोरे बयानी भी आता है, इसको मवस्सिर तरीके से बयान करना भी आता है, इसमें शिद्दत पैदा करना भी आता है, मौजू में मैटर में जो इशू रहता है उसमें एक तासीर पैदा करना, एक उसमें एक वजन पैदा करना, वो भी आता है। और यहाँ क्या आ रहा है, बतदरीज उतारना भी आ रहा है। ये खुसूसियात हैं अबू आपके, ये सर्फ़े नहव में आता है, इल्म नहव में आता है, यानी एडवांस्ड ग्रामर में। आपको थोड़ा थोड़ा झलकियां दे रही हूँ मैं कि आपके जहन पर बोझ ना पड़े और बात भी समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ गया, इफाल भी समझ में आ गया, बाब इफाल वो क्या है, यहाँ एक बारगी उतारना है। दूसरी जगह पर दूसरे खुसूसियात भी हो सकती हैं उसके, जैसा आएगा हम उसकी निशानदेही करेंगे। एक बार की हम सारे खुसूसियात बयान कर दिए तो शायद वो बोझल हो जाएगा दिमाग पर। इंजाल अब यहाँ पर है एक बारगी उतार देना, और तंजील है बाद में आहिस्ता आहिस्ता उतारना। अब यहाँ क्या कह रहा है अल्लाह, रफ़े समावी की बात आ रही है। इस खाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ये बात इसलिए आई कि मुतवफ़ी, वफ़ा युवफ़ी, वफ़ा युवफ़ी कौसे बाप से आता है। अब इस पर हम गौर करेंगे। वो राफ़िउ का इलैया, राफ़िउ उठा लेना, रफ़त ऊंचाई, बुलंदी, बुलंदी पर उठा लेना। इलैया मुतहिरू का मिनल लजीना कफरू, और तुझे पाक कर दूंगा, तहरा युतहिरू, ये भी बाबे तफसीर से आ रहा है ना, पाक कर देना यानी तुझे बरी कर दूंगा, तुझे पाक कर दूंगा, किससे, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया है। यानी ये जो तुझे मान नहीं रहे, तेरी तालीमात का इनकार कर रहे हैं, तुझे झुटला रहे हैं, तेरी जान पर पड़ गए हैं, तेरी जान को खत्म लेकर दम लेंगे, ऐसा इन्होंने इरादा भी कर दिया है, मंसूबा भी बना लिया है, सूली पर चढ़ाने का भी इनका इरादा हो गया है। वो सूली पर दिखाया जाता है ना, एक शख्स को दिखाया जाता है, उसके हाथ फैले हुए, उसे सीधा क्या वो तख्ते पर जैसे कि उसे मार दिया है, उसे सूली पर लटका दिया है, ऐसा कुछ उनके इसमें है ना। ये क्या, ये मुजस्सिमे जो हैं इधर उधर लटकाए हुए, चर्चों में भी है, उनके कलेसाओं में भी। तो ये कौन चढ़ा, सूली पर कौन चढ़ा, ये किसको दिखा रहे हैं, किसी ने किसी को चढ़ाया गया है, कौन चढ़ा, इसकी भी बात आती है। इलैया मेरी तरफ उठा लूंगा और तुझे आजाद कर दूंगा, तुझे पाक कर दूंगा, मिनल लजीना कफरू, जो भी तेरे खिलाफ, तेरे इनकार कर, तुझे इनकार कर रहे हैं। वो जाइलुल लजीना तबऊ का फौकल लजीना कफरू यौमल खियामा, वो जाइलुल लजीना, जाइलु बनाना, अब यहाँ क्या मतलब है, रखूंगा। वो जाइलु, जाला यजलु से इस्मुल फाइल जाइल बनाने वाला, लेकिन यहाँ ऊपर रखना, किसको, अल्लजीना उन लोगों को, जिन्होंने इत्तबिऊ का, तेरी इत्तेबा करे। अब उनकी इत्तेबा करने वाले कौन हैं, अब हम भी मान रहे, ईसा अलैहिस्सलाम, इंजील, तौरात, जबूर, सब पर हमारा यकीन है। ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, जलील कद्र पैगंबरों में शुमार है, ये भी हमारा यकीन है। तो हम इत्तबा करने वाले हैं, इत्तबा हम इस्लाम की ही कर रहे हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि ये सारे पैगंबर मेरे से पिछले गुजर चुके हैं, इस पर भी हमारा ईमान है। तो हमारा ईमान इस्लाम है, तो दर पर्दा उन पर भी हमारा ईमान है, सारे रसूलों पर ईमान है, सारी किताबों पर ईमान है, मलाइका पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, और अल्लाह की वहदानियत पर है। यह सारा हमारा ईमान, ईमान मुजम्मिल जिसे कहते हैं कि इजमाली तौर पर हमारा सारा ईमान है। जिन्होंने जिन्होंने इत्तबियो का, तेरी इत्तेबा करे, यानी इसमें ईसाई भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। क्या करेगा अल्लाह, उनको फौकियत देगा, सब लोगों पर उन्हें ऊंचा मुकाम देगा। इत्तबिऊ का, जिन्होंने तेरी पैरवी की, फौका ऊपर, अल्लजीना जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, जो लोग कुफ्र करे, यहाँ दंदना रहे हैं, तकलीफें देने रहे हैं, इरादे मंसूबे साजिशें कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में क्या हाल होगा, ये जो तुझे मानने वाले हैं, तेरी इत्तेबात करने वाले हैं, उनको तरजीह दूंगा, उनको फौक दूंगा, ऊपर रखूंगा उन लोगों के जिन्होंने तेरा कुफ्र किया। कब, दुनिया में कह रहा है अल्लाह, इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक, क़ियामत तक ये मुकाम रहेगा।
یعنی رہتی دنیا تک جو تجھ پر ایمان لائیں گے ان کو، جو تجھ پر ایمان نہیں لاتے ان پر فوقیت دوں گا. یہ ہوا بھی. اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا اقتدار انہیں، وہ جو 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے وہ یہود 13-14 ملین مشکل سے ہوں گے. اب وہ کچھ تھوڑا بڑا ہوا تو بھی 15 ملین 1.5 کروڑ ہوں گے. تو ان کی مٹھی بھر یہ جو جماعت ہے وہ یہ عیسائیوں کے سپورٹ سے ساری دنیا کی معیشت ان کے پنجے میں ہے. جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ رگے جان نصرانیوں کی، ان لوگوں کی رگے جان نے پنجے یہود میں ہے، یہود نے اپنے پنجے میں رکھا ہے. یہ دراصل یہ سپورٹ ان کا ہے، لیکن دے آر لائک کنگ میکرس. جس کو چاہے اٹھاتی ہیں، جس کو چاہے گراتی ہیں، جس کو چاہے اڑا دیتی ہیں، جس کو چاہے نسیم مرثیہ کر دیتی. عراق کا کیا حال ہوا اور کئی ممالک کا، اسلامی ممالک کا کیا حال ہوا. یہ کس کی، یہ پردے کے پیچھے ہی ہے. یہ اپنے کندھے پر نہیں رکھتے بندوق ہے، عیسائیوں کے امریکہ کے کندھے پر رکھ کر چلاتے. لیکن ان کو بھی ایک زرخرید غلام جیسا ہی کر لیا ہے، وہ بھی ان کی باتوں کو مانتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے اشاروں پر ناچتے ہیں، حالانکہ وہ بہت میجارٹی میں ہیں. اب یہ کیا ہوگا، کیا ان کی مکاری ہوں گی، کیا ان کی جال سازی ہوں گی، کیا ان کی ذہنیت ہوں گی، کیسا ان کا اقتدار ہوگا، کیسا ان کا غلبہ ہوگا ان لوگوں کے اوپر، یہ اللہ ہی جاننے. کب سے آ رہا ہے یہ ایسی ہی ذہنیت، ایسی ہی ان کی یہ چال چلن، ان کی روش کب سے آ رہی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، تب سے بھی ایسی ہی ضدی قوم، ایسی ہی مکار قوم، سب الٹے کاما کرنے والی. اللہ کا ایک حکم ہوتا اس کے خلاف ورزی بار بار توڑتے. 11 معجزات، 11 عذاب ان پر نازل ہوئے، 11 بار ان سے عذاب ٹلا گیا. 15 دن فالو کرتے، 15 دن میں پھر جاتے. یہ ایسی قوم ہے یہ. اب اس کی امید کچھ بھی نہیں. یہ اچھی ہوگی، اسے ہمیں کچھ اچھے امیدیں رکھیں گی، یہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ قیامت تک. تو ہمیں ہی کیئرفل رہنا. ہمارے جو اعمال ہیں اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال اگر اچھے ہو، جیسا کہ اس وقت مکی دور میں کیسا تھا، کتنے مظالم تھے، لیکن ان کا معیار کیا تھا، ان کا اخلاقی کرداری یہ کیسا تھا، وہ اگر تمہارے میں ابھی بھی ہے تو اب بھی تم بھی ان کنتم مومنین، تم ہی بالا تر رہو گے اگر تم مومن ہو. تمہیں ہی فلاح پاؤ گے، تمہیں ہی فلاح دی جائے گی، تم ہی اوپر رہو گے اگر تم مومن، سچے مومن ہو. اللہ سے ڈر رکھنے والے، دوسروں سے سب ڈرنا نہیں ہے. سب کو سلام کرنے والا، اللہ کے پاس اللہ کو ایک جھکا تو بس، سب کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اللہ کی نافرمانی کیا تو پھر سب کے احکامات جیسا کہ ہمارے اوپر یہاں لاد دیے گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، کیا کیا ہیں، اور ہمیں ڈر بھی ہے. ہم یقین کے ساتھ ایک امن چین کی زندگی تو نہیں گزار رہے. ہمارے اوپر خدا خیر ننگی تلوار لٹکتی ہے. آئے دن کیا کیا ترمیمیں ہو جائے، کیا کیا چینجز ہو جائے، کیا کیا آ جائے گا. بیٹھا ہے ایک ہے، اس کا بھی وقت آ رہا ہے، آہستہ آہستہ، اللہ کرے جلد از جلد آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یہاں پر، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کی بات یہاں پھر یاد ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. اللہ خفیہ تدبیر کر رہا ہے، وہ لوگ بھی تدبیریں چلا رہی ہیں. صلیب تیار ہو گئی ہے، لٹکا لیں کا اب باقی ہے. ان کے اوپر ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے ہی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریہ، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. کیا تدبیر تھی؟ جب اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھے اپنے پاس واپس بلا لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی ساری جماعت سے، جو بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں ان سے، اور ان کے گندے ماحول سے، اور ان کے ساتھ سے، یعنی ان کے ساتھ رہن سہن سے تجھے میں پاک کر دوں گا، مطہر پاک کر دوں گا، تجھے بری کر دوں گا. اور تیری پیروی کرنے والوں کو، تجھے ماننے والوں کو، تیرے تعلیمات کو ماننے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا تری دوں گا، یعنی فوقیت دوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے.
यानी काफिरीन पर मुसलमानों को, ईसाइयों को बालातरी है, ये अल्लाह कह रहा है। फिर तुम सबको आखिर का मेरे पास ही आना है। वो एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा ये इसमें याद किया जाता है कि याद रखो, ये भूलना नहीं। तुम जितना भी करो दुनिया में, जो भी अमल करो, अच्छे अमल हैं, बुरे अमल हैं, वहां तुम्हें जवाबदेही देना ही है, तुम्हें आना ही है। सुम्मा इला मर्जिउकुम फहकुम बैनकुम, तुम आओगे मेरे पास, वापस पलट कर आओगे, फाहकुम, फिर मैं फैसला कर दूंगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फी माँ, जिसमें, फी में माँ, जो, तुम थे, फी ही, उसमें, तख्तलिफून, जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे थे, जो भी तुम्हारे इख्तिलाफात थे उसमें उसका फैसला हो जाएगा। कब? तुम्हें आना ही है। ये बात तुम्हें याद रखना है कि मेरी तरफ तुम्हें लौटकर आना ही है। अब इसका थोड़ा ग्रामर पॉइंट्स अगर हम देखें, वफा युवफी, इससे पहले भी लास्ट टाइम जब कुरान का हमने वो गुज़िश्ता दौरे में ये आया था, ये पूरा मैंने बता दिया था, फिर भी अगर आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, मुतवफ़ी का आया है ना, तवफ़ा या तवफ़ा, तवफ़ा या तवफ़ा, बाबे तफव्वुल से आता है, बाबे तफव्वुल, पूरा पूरा ले लेना, पूरा पूरा ले लेना, बाबे तफव्वुल। अब ये बाबे तफील में आया तो कैसा आ रहा है देखिए। इससे पहले एक आयत गुजर चुकी, कौन सी आयत? आयत नंबर 25, आयत नंबर 25, वो उफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, वो उफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत। वफा, वफा युवफ़ी का ये मजहूल है, इसका मतलब क्या? जो भी कमा कर लाई है हर नफ्स, उसका पूरा पूरा अजर दे दिया जाएगा। उफ़ियत बोले तो दे दिया जाएगा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा। अब ये किससे आता है? बाबे तफील से आता है, वफा युवफ़ी तौफियतन। मैं दो ही समझा रही हूँ आपको, बाबे तफील, बाबे इफल, इतना ही है और ज्यादा दूसरा नहीं। बाबे तफऊल का आ रहा है, इस वास्ते निशानदही कर रही हूँ आपको मैं। कौन सा बाबे तफसूल में आ रहा है? मुतवफ़ी का, तवफ़ा युतवफ़ी जो है ये बाबे तफव्वुल में आ रहा है, यानी पूरा पूरा ले लेना। इससे पहले आया था वो उफ़ियत, ये बाबे तफील से आया था। ये क्या है? पूरा पूरा दे देना। क्या आया था ये आयत में? आप देखिए 25वीं आयत, वो उफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, दे दी जाएगी, पूरी पूरी दे दी जाएगी। अल्लाह कुछ रोकता है क्या? वला युज़लिमून भी कह रहा है आगे, वला युज़लिमून, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी जरा भर भी हक तलफी नहीं होगी, पूरा पूरा दिया जाएगा। जो भी जितना भी कमा कर लाए हैं, छोटी छोटी नेकी, बड़ी बड़ी नेकी, जो भी है, जहां भी किया है, जमीन में किया है, पानी में किया है, हवा में किया है, जहां भी है अल्लाह निकाल लेगा और उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। ये आ रहा है बाबे बाबे तफील में। मैं आपको डिफरेंशिएशन करा रही हूँ, बता रही हूँ बाबे तफील क्या होता है और बाबे इफाल क्या होता है। और यहाँ एक आ गया बाबे तफव्वुल। अब जो आया है मुतवफ़ी का, बाबे तफव्वुल में से है, यानी पूरा पूरा ले लेना। मुतवफ़ी का, मैं ले लूंगा, पूरा पूरा ले लूंगा, तुम्हें पूरा पूरा ले लूंगा। इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, वो राफिऊ का, और तुझे उठा लूंगा ऊपर। इलैया, इलैया मुरक्कब किसका है भाई? इलैया, अल्लाह की ये तरफ, दो, अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की इला, तरफ। इला प्लस या, वेरी गुड। या मुतकल्लिम है, इला का एक या ऐड हो गया है, या मुशद्दद कई को आया है। इला उर्दू में आप जब लिखते हैं तो अलिफ, अलिफ लाम, लाम या अलिफ। भी आता है नहीं, हम्म या आता है, उसके ऊपर खड़ी जबर होती है, इला, इला। हम्म इला में भी एक या है, उसके बाद या मुतकल्लिम का भी या है। अब ये दो या बाजू बाजू लिखने के बजाय ये एक या को मुशद्दद कर दिया गया। इलैया कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। डबल। हाँ, इलैया,
राफिउका इलैया, उठा लूंगा तुझे मेरी तरफ, वो मुतश्शिरुका, और तुझे पाक कर दूंगा, मिनल लजीना कफरू, उन लोगों से जो कुफ्र कर रहे हैं, तेरा इनकार कर रहे हैं, वो जाइलुल लजीना, और तुझे बनाऊंगा, वो जाइलुल लजीना तबऊका नहीं, वो और बनाऊंगा उन लोगों को जो तेरी इत्तेबा करते हैं, फौकल लजीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, उन सब लोगों के ऊपर जो कुफ्र करते हैं क़ियामत तक, यानी दुनिया में भी। सुम्मा इला मर्जिउकुम फहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, यानी कहा जा रहा है कि ऐ ईसा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे पूरा पूरा उठा लूंगा, मुतवफ़ी का, यानी इंसान अगर मर गया तो रूह एक ऊपर जाती है, जिस्म यहीं रह जाता है और जमीन में दफन कर दिया जाता है। ये जमीन से आई है, यह जिस्म जो है ये जमीन से आई हुई चीज, और रूह क्या है, आलम बाला की, अल्लाह की तरफ से। आसमान रूह की। अल्लाह की तरफ से, तो वो ऊपर चली जाएगी, अल्लाह के पास चली जाएगी, वो अल्लाह के पास जाती है, उसका सफर पूरा होता है, पूरे सातों आसमान का सफर होता है, फिर अल्लाह के सामने उसे पेश होना है, फिर वहां हुक्म मिलेगा कि वो इलीयीन में जाएगी या सिज्जीन में जाएगी। अल्लाह के हुक्म के बाद अगर इलीयीन में है, उसका दर्जा मुकाम बुलंद है, तो वो इलीयीन में उसका मुकाम वो पा जाएगी, यानी जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और वहां उसका मुकाम होगा बहुत अच्छा मुकाम। अल्लाह उसमें हमें शुमार फरमाए। अगर सिज्जीन है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उससे बचाए, तो वो हुक्म होगा। तो ये सारा सफर होता है। अब यहाँ क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में जिस्म भी, रूह भी, जान भी, पूरे का पूरा उस वास्ते बाबे तफव्वुल में आ गया। तवफ़ा या तवफ़ा, तवफ़ा या तवफ़ा, बाबे तफव्वुल, यानी पूरे का पूरा उठा लूंगा तुझे, जैसा आम मौत के वक्त होता है वैसा नहीं, पूरा। अब ये यहूद इनके ऊपर बहुत जानी दुश्मन हो गए थे। यहूदियों को ये यहूद क्या करते थे, इनका बस नहीं चलता था, तो वहाँ रोम के अंडर में थे। अब जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल कर रही थी, लेकिन उससे भी किससे परमिशन लेना होता था, क्वीन विक्टोरिया से लेना होता था। एक्चुअली रूलिंग किसकी थी, हुक्म किसका चलता था, वहां का चलता था, बर्तानिया का चलता था, वहां से लेना पड़ता था। यहाँ भी ऐसी ही हालत थी कि एक ये पपेट किंग तो इनका था, लेकिन रोमियों की, इनके इनके ऊपर चलते थे हुक्मरानी रोमियों की ही। अगर ये कुछ करना होता तो रोमियों को जाकर मनाना था, ऐसा है, ये हाल है, ईसा ऐसा कर रहा है, इसके ये चाल चलन है, ये तुम्हारा तख्ता उलटना चाहता है, देखो खबरदार हो जाओ, इसको गिरफ्तार करो और इसे क्या करो, सूली पर चढ़ा दो। ये सारी सरगुज़िश्त लिख कर इन्होंने रोमियों को दे दी थी, यहूद ने दे दी थी। इनका बस नहीं चलता था, इन्हों उनसे परमिशन लेता था, उनको बोलना था एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सिर्फ रेकमेंड कर सकते थे, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने कहा, और इनको पकड़ाने के लिए बहुत चालें चली, इन्होंने क्या किया, गिरफ्तारी के वास्ते बहुत कोशिश की। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए। वो एक बाग था जहाँ एक कोठी रखी है, कोठी भी होती है ना बाग में, जिसमें ये आलात औजार हथियार, ये जो गार्डन टूल्स होते ना, उसमें क्या होती है, कुदाली होती है, खोदने का होता है, वो जो होता है वो सारे टूल्स जो होते हैं ना, गार्डन टूल्स, वो रखने के लिए जो कोठरी होती है, उसमें वो रूपोश हो गए थे। अब इनके हवारियों में से ही एक मक्कार निकला, चालबाज निकला, इनके पास धोखा करने वाला निकला, और उन्होंने उसने क्या कहा रोमियों से, देखो हमारे सरदार, हमारे ये जो है ईसा छुप गए हैं, और मैं तुम्हें उनको पकड़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब कहूंगा कि ऐ मेरे आका, तो तुम आकर उनको पकड़ लेना, मैं कहूंगा ऐ मेरे आका, तो वही मेरे आका होंगे, उसको तुम आकर पकड़ लेना। ये तजवीज उसने रोम के वो जो थे एग्जीक्यूशन ऑफिसर, जो भी आया था, उसका नाम कुछ आ रहा है, स्पॉन्टिफ या कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो जो आया था उसको इसने ऐसा
एक ये दी कि इस तरह से मैं करूंगा तो तुम उसको पकड़ लेना। चूंकि रोमियों को ईसा अलैहिस्सलाम का ये कुछ मालूम नहीं था, वो क्या है, कैसे हैं, क्या कर रही हैं, वो सब नहीं मालूम था। उनकी बड़ी सल्तनत है तब। उस वक्त रोम और ईरान दो ही बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, दो ही थे सुपर पावर्स, जिसकी वजह से इस्लाम को भी तकलीफ पहुंची, ये दो ही थे। तो ये क्या हुआ, लास्ट सफर के बाद, आखिरी खाना उसको जो कहा जाता है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कुछ कहा। क्या कहा, वो भी बार बार मैंने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुताल्लिक निशानदही की और उसकी तफसील बताई कि देखो, तुमसे मैं बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं अब नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारी जो दिमागी जहनी सतह है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि तुम मेरी बातों को समझ सको। अब नहीं समझ सकोगे तुम। मेरे बाद ये कहेंगे पैगंबर, वो उनका हुलिया ऐसा होगा, वो फलां वादी में पैदा होंगे, उनके माँ बाप का नाम ये होगा, ये सारा सब कुछ बता कर, ये जरूरी है हमें जानना कि उन्होंने बता दिया है। ये सब कुछ बता कर कहा कि तब तुम समझ सकोगे। वो जो भी कहेंगे उसको सुनना, तुम उसको सुनना, उस पर कान धरना, क्योंकि तब तुम्हारी जहनी सतह उसके काबिल होगी कि तुम उसके इस्तेदाद रखोगे, तुम समझ सकोगे उसे। अब ये कहने के बाद वो अपनी कोठी में रूपोश हो गए, बंद हो गए और कहा कि अच्छा, मैं अब इबादत में रहता हूँ, तुम्हारा काम कर लो, तुम भी इबादत करो। वो दूसरी जगह वहीं बाग में कहीं हो गए होंगे। अब यहाँ क्या हुआ, ये कोठी में रह गए। इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने गिरफ्तारी का ये दे दिया है, गिरफ्तारी का रिकमेंडेशन दे दिया है, गिरफ्तार कर लो उसके बाद सूली पर चढ़ा दो, ये रिकमेंडेशंस इन्होंने दे दिए हैं यहूद ने। अब गिरफ्तारी के वास्ते वो ताक में है, ढूंढ रहे हैं। अब क्या करता है, ये उसको जाकर खबर दे देता है कि ये जो मक्कार था, इन्हीं में जगह दगाबाज धोखेबाज जो हवारी, इनमें से ही एक निकला, उसका नाम भी कुछ था, मेरे दिमाग से निकल गया है। तो वो क्या करता है, उनको बोल देता है कि देखो तुम यहाँ ठहरो, मैं आकर तुम्हें लेकर जाता हूँ, और जिसको भी मैं ऐसा एड्रेस करता हूँ कि आए मेरे आका, तो तुम क्या करना, उसको पकड़ लेना, वही ईसा होंगे। अच्छा, अब ये वेटिंग में है। अब यहाँ क्या हुआ, अल्लाह का मंसूबा क्या था, अल्लाह का प्लान, वो सबसे बड़ा प्लान, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है, तो अल्लाह क्या किया, अल्लाह ने इनको उठाना था, और इन्हें अब एक तस्कीन भी, तसल्ली भी दे दी गई थी कि तुझे पूरा पूरा मैं उठा लूंगा, बेफिक्र रहना, तू इनसे परेशान ना होना है मेरे बंदे। ईसा अलैहिस्सलाम को खिताब करके कहा गया था, तो अल्लाह ने 4 फरिश्ते भेजे, 4 फरिश्ते आते हैं और छत फटती है। वहां ये कौन है, ये मक्कार जो है, वो ताक में खड़ा है कि जाकर बता दे कि कब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और कब इन्हें पकड़ा दूंगा। अब क्या हुआ, ये अंदर जाने की कोशिश करता है, दरवाजे के खोलता है या तोड़ता है या जो भी करता है, अंदर जाकर फाइंड आउट करने के लिए कि ये हैं ईसा अलैहिस्सलाम है। तो क्या मंजर देखता है कि 4 फरिश्ते उतरे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर ले जा रहे हैं। और अल्लाह क्या करता है, इन द मीन वाइल, इसकी शक्ल, ये मक्कार की शक्ल क्या करता है, हम शक्ल बना देता है ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इसको दे देता है, ये ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो जाता है। अब ये बौखलाया हुआ, हैरान परेशान बाहर आता है। बाहर आते ही जो हवारी हैं, वो जो बाग में थे हवारी, तो वो क्या करती हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका बोल को भागते हुए आती है इसकी तरफ। तो समझ लेता ये जो आया था पकड़ने के लिए, रूमियों का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था, ये काम पर मामूर था, तो वो क्या करता है, यही है आका, और इसकी सूरत भी मिलती जुलती, उसको तो मालूम नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, आ रहे हैं, सब भाग भाग कर आ रहे हैं। क्यों बाहर आ गए, अंदर तो आप इबादत में थे, बाहर आ गए, तो ये बौखला कर आए, सब आ गए इसके पास से, और सब कह रहे हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका। तो उसने पकड़ लिया इसको, यही आका समझकर, यही ईसा समझकर पकड़ लिया, और वो फांसी पर चढ़ा, उसको फांसी पर चढ़ा, उसको गिरफ्तार किया गया, और वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, उस पर मोहर लग जाने के बाद, वो उसको चढ़ाया गया सलीब पर, फांसी पर। अब ये जो दिखाते हैं ना, सलीब पर चढ़ा हुआ, 2 हाथ फैले हुए, और उसके गले में फांसी, वो कौन है, वो ईसा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, वो है वो जो मक्कार था।
जो दगा दे गया, धोखा दे गया, बराबर की सजा उसको मिल गई। ये यहूद ऐसे ही है, शुरू से भी इनकी तारीख में क्या है, सबके साथ धोखा धोखेबाज, दगा, धोखा देना। इनकी तारीख ही ऐसी है। और ये बहुत मुट्ठी भर लोग, ये पहले तो इनको शहर में आने नहीं दिया जाता था, इनकी कोई औकात नहीं थी, इनको कोई हैसियत नहीं थी। आना था कोई अशिया जरूरी खाने पीने की, खुर्दनी अशिया खरीदने के लिए, तरकारी, ग्रोसरी, ये जो अनाज वगैरह खरीदने के लिए उनको कुछ मोहल्लत दी जाती थी, घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे टाइम दिया जाता था। उसमें आना था, उसी में आना था, उसी में वापस चले जाना था, आना नहीं था, अंदर रहना नहीं था। ऐसी तारीख इनकी गुजरी है, इस दौर से ये गुजरे हैं। और ऐसी पस्ती की हालत में थे ये कि इनको ये जो अछूत को ट्रीट किया जाता है ना, उससे भी बुरा ट्रीटमेंट था इनका। 1.5 करोड़ की आबादी होंगी या उससे भी कम होंगी, 13-14 मिलियन होंगे, ये 15 भी नहीं है ये। तो एक ऐसा गुजरने के बाद क्या हुआ, इनकी हालत थोड़ा जब बराबर हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए इनकी इसके इस्लाह के लिए, और इंजील नाजिल हुई, तो उनके साथ भी दगा कर गए, धोखा कर गए, और उनके साथ भी आखिर उनको इनकी दानिश में इन्होंने फांसी पर चढ़ाकर दम लिया। लेकिन हुआ क्या, 33 एडी, एडी कब से शुरू होता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से एडी शुरू होता है, नहीं, बीसी है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद एडी है, उसका तो रोमन ये है। एडी का ये क्या है, फुल फॉर्म, लैटिन वर्ड है ये, अन्ना डोमिनो, हाँ अन्ना डोमिनो। अन्ना डोमिनो, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, पैदा होने के बाद। अब वहां से ही यहाँ का ईरा शुरू हुआ है। हमारी हिजरी अलग है, हमारी हिजरी है, हिजरत से हमारा साल शुरू होता है, उनका साल शुरू होता है इनके ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद। तो ईसा अलैहिस्सलाम 33 इयर्स के थे। ये थोड़ा वाकया है, इनकी तारीख दोहरा दे रही हूँ मैं। आपकी हालत में भी हम सोचें तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये आप सोच सकते हैं। तो 33 इयर्स में ये रफ़े समावी हुआ, यानी मुतवफ़ी का जो अल्लाह कह रहा है उठा लिया, पूरे का पूरा उठा लिया, अल्लाह ऊपर आसमान पर उठा लिया, अपनी तरफ ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, 40 साल के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद, यानी रफ़े समावी के तकरीबन 40 साल बाद 70 एडी में टाइटस का हमला हुआ। टाइटस वहां का एक बहुत बड़ा बादशाह, जो यहूदियों पर हमला किया, और कितने कत्ल किया, कितने, एक दिन में 1,20,000 या 1,33,000, 1,33,000 एक दिन में कत्ल किया। उसके बाद ये कैप्टिविटी में आ गए जो भी थे। उसके बाद बेबीलोन का उन्हें कौन है, नबूकदनेस्सर, उसका भी हमला हुआ, ये हैकल सुलेमानी गिरा दिया गया, इनको गुलाम बनाकर 6 लाख को कत्ल किया, 6 लाख, वो भी 12 लाख का मामला था, 6 लाख को कत्ल कर दिया, 6 लाख को बेबीलोन लेकर गया, और वहां पर वो कैप्टिविटी में थे, यानी मुखय्यद रखे गए थे, कैद में थे। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया अल्लाह ने। अब ये नबूवत इनको जो मिली, तौरात फिर से लिखी गई, और इन्होंने इनको कैप्टिविटी से ला कर, कैप्टिविटी से लाया जुल्करनैन ने। जुल्करनैन जब यरूशलेम पर हमला करते हैं और उन्हें फतहयाबी हासिल होती है, तो उन्होंने एक एहसान यहूद पर यह किया कि जाओ, अब तुम्हें यहाँ गुलामी से तुम आजाद हो, जाओ तुम्हारी रियासत बसाओ। तब उन्होंने फिर जाकर वहां पर हैकल सुलेमानी भी फिर से उन्होंने बसाया, फिर उन्होंने अपनी रियासत बनाई। वो जो हजरत उमर फारूक का ये हुआ था, हजरत उमर फारूक की खिलाफत में एक एक्सपेडिशन भेजा गया था यरूशलेम के लिए, उन्होंने मुहासिरा किया था। ये इससे पहले की बात है जो यहाँ मैं कह रही हूँ, मैं थोड़ा आगे आई हूँ। दरमियान में एक वाकया हजरत उमर फारूक की खिलाफत के वक्त जो हुआ, आपने एक एक्सपेडिशन भेजा था, वहां मुहासिरा किए हुए थे, वो लोग आए नहीं जंग के लिए, तो इन्होंने मुहासिरा कर लिया। मुहासिरा होता है ना, ये जंगी स्ट्रेटेजी ऐसी ही होती है, जो जंग के लिए आमना सामना करने के लिए नहीं आते उनको मुहासिरा कर लेती, कैद में ले लेती, कैप्टिविटी जैसा पूरा बंद हो जाती, पूरा बंद कर देती, उनको बाहर निकलना नहीं, अंदर ही मुखय्यद कर देती। तो ऐसा मुहासिरा बहुत दिनों तक चला, बहुत दिनों तक। ये जो यहाँ से गए थे लश्कर
इस्लाम का लश्कर वो मुहासिरा किए हुए था। बाद में क्या करे, ऊपर आकर कलेसा के ऊपर यरूशलेम, ये बैतुल मक़दस है ना, उसके छत पर आकर यहाँ के बड़े बड़े जो उलमा थे, इनके बिशप थे, जो चीफ प्रीस्ट वगैरह थे, ये आकर अनाउंस करने लगे कि देखो मुसलमानों, क़ियामत तक भी अगर तुम ऐसा मुहासिरा करके बैठे रहो तो ये तुम्हारी कामयाबी होने वाली नहीं, तुम्हारे हाथ यरूशलेम आने वाला नहीं। तुम्हारे में हमें वो आदमी नजर नहीं आ रहा है जिसके मुताल्लिक हमें बताया गया है कि उसके हाथ में कुंजी थोपी जाएगी, कुंजी सौंपी जाएगी, जो हमें बताया गया है। ये खुलिया बताया गया है एक शख्स का जिसके हाथ हम यहाँ की कुंजी देना है, लेकिन वो शख्स हमें तुम्हारे दरमियान नजर नहीं आ रहा। तुम में वो शख्स नहीं है तो हम तुम्हें की नहीं थमा सकते, और तुम लाख यहाँ बैठे रहो, क़ियामत तक बैठे रहो, ये होने वाला नहीं है, हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है जिस शख्स को ये हैंड ओवर करना है उसका हुलिया ऐसा है, वो ऐसा होगा, इस शख्सियत का मालिक होगा, ये खदो खामत होंगे, इसकी चाल चलन, इसका सब कुछ हुलिया बता दिया गया था। तो इनको जो एक्सपेडिशन के क़ियादत में थे, जो लीडर थे, सिपह सालार थे, उनको अक्कर हुआ कि ये हो ना हो, ये हजरत उमर फारूक ही की तरफ इशारा है। तो आपको खत लिख दिया गया, तो आप आए, आप किस शान से आए। एक मंजिल गुलाम बैठता था, एक मंजिल हजरत उमर फारूक बैठते थे, ये भी वाकया हम जिक्र कर चुके हैं इसका भी। आखिर में जो मंजिल थी उस वक्त क्या था, गुलाम का ये था, गुलाम बैठना था, गुलाम की बारी थी। लाख कहने पर भी, लाख मिन्नत समाजत करने पर भी हजरत उमर फारूक राजी नहीं हुए बैठने के लिए घोड़े पर या ऊंट पर सवारी थी वो, बैठने के लिए राजी नहीं हुए। तो इसी हालत में गए, नुकेल पकड़े हुए थे, गुलाम के मानिंद जा रहे थे, लेकिन दूर से समझ गए, वो कलेसा के बिशप के वो जो प्रीस्ट थे, चीफ प्रीस्ट था, वो समझ गए कि यही शख्स है जिसको ये कीली देना है, ये की थमाना है किसको, वो शख्स आ रहा है, वो समझ गए। अब वहां से ये थमा दिया गया। ये भी हो, ये भी एक तारीख का एक वाकया। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने क्या किया, ये बड़ी जोर देने वाली बात है, अहमियत की हामिल बात यह है कि उस वक्त जो हजरत उमर फारूक ने ये तय किया कि ये जो है यरूशलेम ओपन सिटी करार दे देंगे, इसे ओपन सिटी। यहूद भी आए, ईसाई भी आए, मुसलमान भी आए, सब आकर यहाँ इबादत कर सकते हैं, इसका यहाँ जियारत कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटी में ये फतह तो नहीं हुआ ना, जंग नहीं हुई ना। तो इन्होंने जब वो बिशप से इनको देने हैंड ओवर करना था, तो उन्होंने क्या करे, एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहिदे के तहत हैंड ओवर किया था। ये ट्रीटी के तहत हैंड ओवर करने के वक्त उन्होंने क्या करे, एक क्लॉज उसमें, एक ट्रीटी का कंडीशन उसमें उन्होंने ये लगाया कि यहाँ यहूद आए जरूर, जियारत करें, इबादत करें, लेकिन वापस चले जाना, यहाँ ना रहाइश पजीर होना, ना जमीन खरीदना, ना यहाँ बसना। क्या था ट्रीटी का क्लॉज, ईसाइयों की तरफ से था ये। आना, इबादत करना, वापस जाना। सुनाई दे रहा है नहीं आपको? हाँ नहीं, हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है माँ। हाँ, आप थोड़ा बताइए मुझे क्या था आपके सिनेरियो में। अब हम जाने तो उनका क्लास क्या था, कितनी दूर अंदेशी से उन्होंने काम लिया था, उसके बाद क्या हुआ। ये जो हालात हो रहे हैं ना, ये कई को हो रहे हैं, किसकी गलती है, ये थोड़ी गलती अपनी भी है नहीं इसमें। ये लोग भारी कीमत दे रही हैं बोलकर बेच लिए सही था। ट्रिनिटी का क्लास क्या था, आना, ईसाइयों के मुताल्लिक उन्होंने इबादत नहीं कहा, करना, वापस जाना। यहूद के मुताल्लिक कहा, मुसलमानों के मुताल्लिक भी नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने, ट्रीटी में लिखा हुआ था कि वो आए, जियारत करें, इबादत करें, वापस चले जाएं। वो आना नहीं है, उनको बसना नहीं है, जमीन खरीदना नहीं है, रहाइश पजीर नहीं होना है, यहाँ रेसिडेंस नहीं बनना है। तो ये कैसा हुआ, कैसा बने ये,
अब ये जो हाल है, जो कब्जा कर बैठे हैं, ये कैसा हुआ? जब ये ट्रीटी का क्रॉस फलस्तीनिया फलस्तीनिया बेच लिए सैटा अपने जगह को। फलस्तीन के लोग यहूदियों को ज्यादा पैसे दे रही बोल को बेच लिए अपने जमीन, तो वो आको बस गए और उसके ऊपर काबिज हो जाको ये सब हमारा अच्छा है, हमारे दादा परदादा का, तुम्हें बाहर सही सो तुम्हें निकलो घर को बैठे। और इससे पहले इन्होंने क्या करे, ये लोग ये फलस्तीनिया है ना, इनकी भी एक गलती है। उन्होंने ज्यादा पैसे देको खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, तो इन्होंने क्या करे, अपने जमीन लालच में बेच डाले उनको। बेचे भी तो इन्हों खाली अपनी जमीन के मालिक होते, ये पूरी रियासत के तो मालिक नहीं होते, लेकिन इनकी मक्कारी, इनकी चालबाजी इतनी हद तक गई कि पूरे इस पर काबिज हो गए थे। अब ये तुर्किया को भी, जब तुर्किया के खिलाफत आई थी, उस वक्त भी ये यहूद क्या करे, बहुत ज्यादा से ज्यादा मोटी मोटी रिश्वत देने की कोशिश करे कई को, यहाँ जाने के वास्ते, यहाँ इजाजत लेकर रियासत कायम करने के वास्ते। उन्होंने नहीं माने, तुर्किया नहीं माने। बाद में जो बाद की खिलाफत आई थोड़ा कमजोर थी, तो उनको ये करके, और बाद में जुल्फिकार के जमाने में इनको जब इजाजत दे दी गई तो ये आए। उसके बाद 1979 में क्या हुआ, बैलफोर डिक्लेरेशन। बैलफोर डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां का बर्तानिया का कोई था जिसको ये चापुलिसी करके या कुछ भी रिश्वत वगैरह दे के क्या क्या किए होंगे। इनकी पॉलिसी है ना, इनकी जहनीत ऐसी ही है। तो इन्होंने उससे डिक्लेरेशन करा लिया कि ये जाकर रियासत कायम कर सकते हैं, ये जाकर वहां बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वहां अपनी रियासत बना सकते हैं। ये डायस्पोरा कब हो गया था, हजरत उमर फारूक के जमाने से पहले ही डायस्पोरा हो गया था। यानी इन्हें भगा दिया गया था, वो टाइटस के बाद ही इन्हें भगा दिया गया था कि जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ तुम रह नहीं सकते। तो क्या करे, जहां सिंह समाई वहां चले गए, कोई यूरोप गया, कोई हिंदुस्तान आया, कोई इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान तब तो मिलकर थे, कोई इस तरफ आया, कोई यूरोप गया, कोई दूसरी जगह गया, वहां भी गए, अरब ममालिक भी चले गए, और ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शन में फैल गए ये। इसको डायस्पोरा कहा जाता है। डायस्पोरा बोले तो फैल जाना, मुंतशिर हो जाना, इंतशार। उर्दू में डायस्पोरा बोले तो इंतशार, यानी सूर्य सारी दुनिया में फैल गए। उसके बाद जो रियासत कायम हुई, उसके बाद सब को बुला लिया गया, सब आने लगे, एक जगह जमने लगे। अब सारे यहूद तकरीबन, बहुत से तो हैं वहां पर, मुकम्मल तो नहीं, अभी फैले हुए हैं इधर उधर, लेकिन ना बहुत से तो वहां चले गए हैं। तो ये है इनकी हिस्ट्री। ये ट्रीटी में इन्होंने साफ बता दिया था, इनको मालूम था कि यहूद को यहाँ नई जगह देना है, इनको पनाह नहीं देना है, तो उन्होंने कहा था उनको, वो आने आए, क्योंकि आपने इजाजत दे दी है तो आए, और तुम्हारे फारूक इजाजत दे दिए थे, आकर तवाफ कर सकती हैं, जियारत कर सकती हैं, यहाँ आ सकती, लेकिन नहीं, इनको रहने ना दिया जाए। ये ट्रीटी में लिखा हुआ था, जिसके तहत यरूशलेम हैंड ओवर हुआ था। अब उसके खिलाफ वर्जी हो गई, ये लोग जमीन बेचने लगे, तो इनका सिक्का भारी हो गया। अब यहाँ पर पंजा जमाए बैठे हैं। अब जो भी चल रहा है, हालात कैसे हैं, हमारे ऊपर ही उनकी तसल्लुत हो गया है। तो ये था, ये सारी इनकी थोड़ी सी तारीख थी, ये जो इससे पहले भी हम बयान कर चुके हैं, ये हमें मालूम है, फिर भी आज कुछ हमने याद कर लिया। हाँ, तो ये समझ में आ गया। मकरू मकर अल्लाह ये जो हुआ ना, उसके जवाब में अल्लाह ने तसल्ली दे दी कि ऐसा तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा, पूरा पूरा ले लूंगा, तेरे जिस्म के साथ, रूह के साथ, जान के साथ पूरा पूरा ले लूंगा। और रिवायत में आता है कि इन्हें कैसा ले लिया गया, कैसा लिया गया, 4 फरिश्ते जो आए दीन की हालत में, क्योंकि ये जो फजा में उड़ना है, फजा में ले जाना है, ये भी किस में आता है बोलिए, मुहक्कमात में आता है, मुतशाबिहात में आता है ये वाकया? मुतशाबिहात। मुतशाबिहात में आता है, नहीं हमें पता नहीं। ये फरिश्ते आए, क्या सवारी लेकर आए, नहीं, या कुछ कोई डिवाइस लाए, कुछ चीज थी जिसमें इनको लेकर गया, हमें पता नहीं। बताया जा रहा है कि
उठा लिया जाएगा, तुम्हें उठा लूंगा, पूरा पूरा उठा लूंगा। अब इसके मुताल्लिक आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नींद का गलबा दे दिया गया, नींद के गलबे में आ गए, उन्हें मालूम नहीं हुआ। अब ये हवा में उड़ना, फरिश्ते तो उड़ते हैं, उनके पर होते हैं, उनको शायद कोई तकलीफ भी नहीं होती होंगी, जैसा हम चलते हैं जमीन पर वैसा उड़ते होंगे, लेकिन इंसान को हवा में उड़ना, थोड़े आदमी, मुझे मालूम है एक किसी औरत का, हमारे करीबी जान पहचान के आदमी है, उनका हज के लिए ये खुर्रा भी हो गया था, पैसे भी दे दिए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन बाद में उनको वो हिम्मत ही नहीं हुई हवा में उड़ने का, जहाज में जाने का। कभी जहाज में सफर नहीं किया, हवाई जहाज का सफर नहीं किया, तो गए नहीं वो, हज के लिए नहीं गए। तो इतना डर होता है इंसान को हवा में जाने से, हवा में उड़ने से। हालांकि वो तो ये घर के जैसा है, बिल्कुल घर ही है, वो सारे सहूलियात के साथ, बैठने का, उठने का, सोने का, रफ़े हाजत का सब कुछ है वहां पर, खाने पीने का सब कुछ है, लेकिन ये आदमी डरता है, इंसान डरता है। तो ये भी डर ना होने पाए, अल्लाह उन्होंने नींद का गलबा दे दिया और उन्हें उठा लिया गया। अब वो 22 से पिछली आयत में आ गया है कि वो बात करेगा महदन भी कहलन भी। कहल बोले तो बड़ी उम्र में भी, बड़ी उम्र में तो हर कोई बात करता है, कई को बता दिया गया है कि बच्चा भी बात करेगा, गवारे में भी बात करेगा, बाद में बूढ़ा होकर भी बात करेगा, अधेड़ उम्र में भी बात करेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि इनकी उम्र अभी बाकी है, इनकी उम्र की मुद्दत खत्म नहीं हुई है, इन्हें है ना फिर लाया जाएगा, ये बड़ी उम्र में भी बात करेंगे। ये इस बात की यादा किया जा रहा है कि ये फिर आएंगे, दुनिया में आएंगे, फिर पैरवी करेंगे इस्लाम की, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी, इनकी उम्र बाद में तमाम होगी, और बहुत से काम है जो इनको करना है। यानी उसी वक्त वो दज्जाल का भी ज़हूर होगा, दज्जाल को भी मारेंगे, इस्लाम का ये करेंगे, इस्लाम की अलमबरदारी करेंगे, इस्लाम को गलबा मिलेगा उस वक्त। ये सब कुछ है ना, तो कहलन की भी बात आ गई। तो ये गंदे माहौल से उठाने का, यहाँ से नजात देने का, ये सारा सब कुछ कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक एक ये दे दी जा रही है, पेशन गोई दे दी जा रही है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, ऐसे हालात में, ये कंडीशंस में जहाँ तुम्हारी जान के लाले पड़े होंगे, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा, तुम्हें उठा लूंगा। आपको तसल्ली दी जा रही है। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरा। फिर बाद में जो भी लोग, अब इसी से कंसर्न है, जो लोग भी कुफ्र कर रहे हैं, तुम्हारी बातों का इनकार कर रहे हैं, फ़उअज़्ज़िबुहुम, सो उन्हें अजाब दूंगा, वअज़्ज़िबु, वो दिए जाएंगे ऐसा अजाब, कैसा अजाब, अजाबन शदीदन, ये सिफत है अजाब की, अजाबन शदीदन, बहुत शदीद अजाब में इन लोगों को मुब्तला करूंगा। कहाँ कहाँ, दुनिया में भी, आखिरत में भी। फिर दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन, और कोई इन लोगों को मदद करने वाला नहीं होगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया है, इनकार किया है, तेरी रविश का इनकार किया है, तेरे तालीमात का इनकार किया है, उन्हें मैं दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा, और कोई मददगार उनका नहीं होगा, और वो कोई मददगार ना पाएंगे। लहू मिन नासिरीन, लहुम मिन नासिरीन, वो कोई मददगार नहीं पाएंगे। नासिर नसरा यंसुरू से, नासिर इस्मुल फाइल, मदद करने वाला, नाम भी रखा जाता है, नसीर भी है, नसीर नासिर दो भी इस्मुल फाइल ही है। ये नसीर बाबे तफील में आता है, हमेशा मदद करने वाला, नासिर भी इस्मुल फाइल ही है। वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़ीहुम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। और जिन्होंने ईमान और नेक अमल किए, अमल सालिहात जिनकी, जिनका रवैया रहा, उन्हें उनका पूरा पूरा अजर दे दिया जाएगा। वो अम्मल लजीना, और जो लोग आमनु, ईमान लाए, वो अमिलु स्वालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, फयुवफ़्फ़ीहिम, वफ़्फ़ा युवफ़्फ़ी, तवफ़्फ़ा, वफ़्फ़ा युवफ़्फ़ी तवफ़ियता, यानी ये किस में आ रहा है, बाबे तफील में आ रहा है, पूरा पूरा दे देना, पूरा पूरा दे दिया जाएगा। वो किस में आया था, मुतवफ़ी का कौन से बाब में आया था,
पूरा पूरा ले लूंगा, तफवुल में बाबे बाबे तफव्वुल तफवुल में आया था, पूरा पूरा ले लूंगा, पूरा पूरा दे दूंगा, बाबे तफवील में वफ़ा युवफ़ी। अब यहाँ यही आ रहा है, यही बाब है, वयुवफ़ीहिम, तो पूरा दे दिया जाएगा। ये इसमें आ रहा है, मजहूल में आ रहा है, मजहूल पैसिव वॉइस, वयुवफ़ीहिम, वो दिए जाएंगे पूरा पूरा अजर, उजूरहुम, उनका पूरा पूरा अजर, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं पसंद करता, नहीं मोहब्बत रखता, नहीं दोस्त रखता किसे, जालिमों को, जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये कौन है, कुफ्र करने वाले काफिर लोग हैं। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम, ज़ालिका, ये कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, ये आयत और हिकमत से भरपूर ये जो तस्कीरें हैं, ये जो किस्से हकायक हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, ये अल्लाह कह रहा है या पस मंजर में जिब्राइल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये सारा ये वाक़ियात तुम्हें सुना रहे हैं। तुम तो नहीं थे उस वक्त, प्रेजेंट नहीं थे, तुम्हें ये सारे वाक़ियात बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पस मंजर में आप याद रखिए कि अब ये मदीने का दौर है, मदीने में आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उल्मा है जो आपके मिशन को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तरह तरह के सवालात, वो पिछले सवालात उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़, ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़, मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़, क्या अगर ये पैगंबर हैं, ये अगर नबी हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए ना, टेस्ट करने के लिए कि ये नबी हैं कि नहीं, रसूल हैं कि नहीं, झूठे हैं कि सच्चे हैं, नबूवत का दावा इनका कैसा है, सही है क्या, बरहक है क्या, बहुत बौछार होती थी सवालों की। तो अल्लाह ने इनको बर वक्त ये सारे कहानियां, किस्से, हकायक, वाक़ियात, तस्कीरे, ये सब देकर कह रहा है कि ये आयत और हिकमत से लबरेज ये जो तस्कीरे हैं, वाक़ियात हैं, ये जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब वो पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये कैसा, वो कैसा, आपको ये मालूम है क्या, वो मालूम है क्या। जुल्करनैन के मुताल्लिक पूछा गया था, रूह के मुताल्लिक पूछा गया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना था, नबी है तो जवाब दो, नहीं है तो बरख नहीं बोल पाओ। अब मिसाल दी जा रही है, अच्छा तुम आए यहूदियों, आए नसरानियों, अगर तुम समझते हो कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तो अब एक मिसाल ले लो आदम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह दे रहा है एक मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुए थे ना, पूरा 9 महीने तो गुजरे, माँ के पेट में पूरा 9 महीने का हमल तो गुजार चुके, वो पीरियड तो गुजरा, सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुए। अब आदम अलैहिस्सलाम का ले लो, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, और वो पीरियड भी नहीं, इसमें 9 महीने का पीरियड भी नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, कितने अरसे में पैदा किया, आने वाहिद में पैदा किया, कैसा पैदा किया, ये भी अगेन मुतशाबिहात में है। तो इसको तो तुम जियाद बदरजे उला अल्लाह मानना ना, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह का बेटा मानो या अल्लाह मानो, इसको उससे ज्यादा मानना है नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम तो ये सारे ये पीरियड से तो गुजर चुके, सिर्फ बाप का अमल दखल नहीं था, उसके बजाय कलीमा कुन था, कलीमतुल्लाह। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है, आदम की जैसी है, कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, चलते फिरते इंसान हो गए, वो भी मिट्टी का पुतला ही था, उसमें भी अल्लाह ने रूह ही कह रहा है, अपनी रूह मैंने उसमें फूकी, रूह ही, रूह हाँ क्यों, हाँ को एंड हो जाता है, अब रूह ही या मुतकल्लिम आया तो मेरी रूह, मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी, मैंने उसमें फूंक मारी, पूरा बनकर तैयार हो गया, नोक पलक संवार दिए गए, पूरा पुतला तैयार हो गया, उसके बाद रूह फूंक दिया अल्लाह ने, फिर वो इंसान बन गया। तो इसको बदरजे उला तुम समझना चाहिए, सबसे ज्यादा समझना चाहिए कि ये अल्लाह है, ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ने पैदा किया है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया है, सब अल्लाह की मखलूक है। ये तुम्हारा जो मौकफ है
کہ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوا. یہ سب کچھ تمہاری باطل اعتقادات ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ یہاں کچھ 2 منٹ کا پرابلم ہو گیا تھا. اچھا تو یہ اس کے بعد کا کیا ہے؟ اللہ مثال کس کی دے رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی دے کر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے, مریم کے بیٹے تھے, ابن مریمہ, اور یہ آدم علیہ السلام بھی, ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے, اللہ کے نزدیک ایسی ہی مثال ہے. اور یہ زیادہ بدرجہ اولا, یہ زیادہ ہے کہ تم اس کو سمجھو, یعنی کسی کو سمجھنا ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ ہی واحد الہ ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحق, حق, من ربک, آپ کا رب یہ سارے حقائق بیان کر رہا ہے. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. یعنی اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ یہ سارے واقعات, یہ سارے حقائق, یہ سارے تذکرے آپ کے لیے, آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزوں سے واقفیت حاصل ہو جائے. اور یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے. تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اس میں شک کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بالفرض محال یہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکنات میں ہے. ان کے توسط سے وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے جو کافرین تھے اور وہاں کے یہود تھے, علماء یہود تھے, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا. تمہارے پاس کتاب ہے, تمہارے پاس علم ہے, اور اس کا بھی تمہارے پاس علم آیا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور یہ برحق ہوں گے, تو تم ان شکوک و شبہات میں نہ پڑ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہا جا رہا ہے یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ رہنمائی کی جا رہی ہے, تمہیں بتائی جا رہی ہے. تم کسی طرح کے شک و شبہات میں نہ پڑ جانا, تم ان لوگوں میں نہ ہو جانا. فلا تکم, تو نہ ہو جانا, من الممترین, ممتر, امترا یمتری, شک میں پڑنا, شک شبہات, تم کسی شک میں نہ پڑ جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین. یہ میں نے تلاوت تو کر دی, اب میں تھوڑا بتا دیتی ہوں اس کے متعلق کیا ہے. بولے تو اب یہ وہاں کا ایک قاعدہ تھا, اور یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی آپس میں 2 فریق لڑ رہے ہیں, ایک فریق کو معلوم ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور دوسرا فریق اگر ضد پر آ جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے, تو ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ اچھا چلو بھائی, تم جانتے ہوئے جانتے بوجھتے تم جھٹلا رہے, تم ضد پر آ گئے نہیں, تو ایک کام کریں گے, تم صحیح ہو, ہم صحیح ہیں, یہ معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے اور کون جھوٹا ہے. اب اس کے لیے ہم ایک دعا کرتے ہیں, یعنی جو غلط ہے, جو غلطی پر ہے, اس کے اوپر لعنت ہو اللہ کی, پھٹکار ہو اللہ کی تکلیف, اللہ کا عذاب آ جائے اس پر, ہم یہ دعا کریں گے. آؤ ہم سب مل کر دعا کریں گے. فمن حاجک فیہ, یعنی جو بھی آپ سے اس طرح کا یہ علم آ جانے کے بعد, اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑ رہا ہے اے نبی, تو اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں, اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے لیں, بال بچوں کو بھی بلا لیں, اور خدا سے دعا کریں, بلکہ بد دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ ٹائم ہے تو میں زیادہ بتا دیتی ہوں. یہ علماء یہود جو تھے, سب کچھ جاننے کے باوجود ان پر کتاب کی بھی علمیت آ گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی جا رہی ہیں, لیکن ان کے اوپر سخت ایک آزمائش ہے. جی, سخت آزمائش کا دور ان پر گزر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ انہوں ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا رہے. معلوم ہے, ہمیں کئی واقعات سے معلوم ہو گیا, صفیہ کے واقعات سے بھی معلوم ہو گیا, اور کئی واقعات سے معلوم ہو گیا کہ علماء جانتے تھے کہ یہ برحق ہے, یہ نبی ہیں, لیکن بتاتے نہیں تھے, چھپاتے تھے. کوئی آ کر پوچھتا تھا تو بھی چھپاتے تھے. تو آپ تنگ آ کر ایک لاسٹ ریزورٹ کیا ہے, یہاں بھی ہم ایسا ہی ریزورٹ لیتے ہیں,
अगर कोई मान नहीं रहा तो चलो अल्लाह की कसम खाकर बोलो कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की फिटकार बरसे, अल्लाह की तरफ से अजाब आए। ऐसा होता है ना, तो यहाँ ऐसा ही कहा जा रहा है कि चलो तुम क्या करो, अपने खुद भी आ जाओ। अब तुम जो झुठला रहे हो, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम जानते हो, ये हकीकत जानते हो, तुम भी समझते हो कि ये सच है, मैं सच हूँ, मेरी तालीमात सच है, मेरी किताब सच है, ये जो अल्लाह ने नाजिल किया ये सब सच है, लेकिन फिर भी तुम ऊपरी ऊपरी ये जो मजाहिमत कर रहे हो, झुठला रहे हो। अब इसका वाहिद इलाज ये है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बीवियों को भी बुला लो, तुम्हारे बच्चों को भी बुला लो, तुम्हारे अहले खानदान को भी बुला लो, हम भी हाजिर हैं, तुम भी आ जाओ। और क्या करें अब हम, एक नबतहिल मुबाहिला, इसे मुबाहिल कहा जा रहा है। मुबाहिला बोले तो एक मुजाकिरा, एक अल्लाह से दुआ, एक दुआ या कलाम या बद्दुआ या कलाम करेंगे, जो भी हम में झूठा है उस पर अल्लाह की फिटकार हो। अब ये आखिरी है, फमन हाज्जका, आपसे जो झगड़ रहे हैं, फी ही इसमें, बिम बादी मा जाअका मिनल इल्म, बाद इसके के उनके पास इल्म आ गया। फखुल, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तो कह दें आप, तालो, आओ, तुम आओ, नदू, हम बुलाएं, अब ना आना, अपने बेटे, वो अब ना अकुम, अपना ना अपने बेटे, वो अपना अकुम, और तुम्हारे बेटे, हम हमारे बेटों को बुला लेते हैं, तुम तुम्हारे बेटों को बुला लो, वो निसाना, और हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, वो निसाकुम, और तुम तुम्हारी औरतों को बुला लो, वो अनफुसना, और हम खुद हाजिर हो जाते हैं, हम खुद हाजिर हैं यहाँ पर, वो अनफुसकुम, और तुम खुद भी आ जाओ, तुम सब आ जाओ, सुम्मा नबतहिल, फिर हम इल्तिजा करें, नबतहिल ये मुबाहिला करना, हम इल्तिजा करें, दुआ करें, फनजअल के कर डाले, लानत अल्लाही, के अल्लाह अलल काजिबीन, के अल्लाह लानत बरसाए किस पर, काजिबीन पर। ये इल्म आ जाने के बाद अब ये जो झगड़ा कर रहे हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहो कि हम सब जमा हो जाएं, तुम अपने बाल बच्चों को बुला लो, अपने खानदान को बुला लो, हम अपने बच्चों को, हमने बीवियों को, अपने बच्चों को बुला लेते हैं, और अल्लाह से बैठकर दोनों मिलकर इल्तिजा करें कि हम दोनों फरीकों में जो भी झूठा है उस पर अल्लाह की फिटकार बरसे, अल्लाह का अजाब नाजिल हो। इसको कहते हैं मुबाहिला, नबतहिल, मुबाहिला, उर्दू में मुबाहिला कहते हैं, उर्दू में मुबाहिला ही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।